Good evening, everyone. I'm fine. So let's start without wasting any time. Uh, you have any doubt in the, let's say, question which I have given? Though I have provided the solution, but still, if you are having any doubt, we can work on it. Okay, just 1 second. Okay, wait. Yes, बोलो भाई, बताओ. So I have a doubt in yesterday's question, which you solved in last class. Okay, last class में. Okay. Okay, about last class, yes, I have to cover one more thing in about last class. So many students are not familiar with the differentiation, which I don't know कि आपको कोई differentiation नहीं पता है, ठीक है? So you can, for the time being, you can remember two things. Let's say what we have done is dy by dx is nothing but is slope, and that is also equals to tan theta. That you can remember. Let's say any graph is given. So if any graph is given like this at any point, let's say over here, if you are going to draw a straight line, right, tangent, if you are going to draw a tangent, the tangent is going to, let's say, cut x-axis wherever it is going to cut it, you know, that is going to be, let's say, theta, and this will give you, let's say, slope of the curve at a particular point. ठीक है? So dy by dx का मतलब ये है कि let's say at this point, what is going to be the slope, right? Okay, and what else? Another thing is when we are talking about maxima, for maxima, okay, for maxima or minima, for maxima or minima, dy by dx is going to be dy by x is going to be dy by dx is going to be 0. So slope is going to be 0. ठीक है? So in the last question, we have a probability function PR. In the last question, we have a probability function PR, which is nothing but psi square r dot 4 pi r square, which I have defined like this. Okay. Now, what you need to do is you need to find the maximum value of PR. You want to know what is where is going to be the maximum value of PR. So for maxima, what you need to do is you need to take a differentiation. So you will write dpr by dr is equals to whatever the function is psi square r की जो भी value आएगी you are going to put it, और जो भी ये value बनेगी उसको 0 कर देना है, right? बस उसके बेसिस पे आपको एक r की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज गोइंग टू टेल यू कि वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. ओके, यशवर्धन समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो जो कल हमने Yes, क्वेश्चन किया I था. understood this, हाँ, but I have a doubt in the differentiation step. ओके. सो इन डिफरेंशिएशन स्टेप देयर इज e टू पावर माइनस x पार्ट. तो अगर जैसे मान लो e की पावर माइनस kx पार्ट इज देयर, है ना, dy by let's say dx we are taking. So this is nothing but this is the formula minus k e to power minus kx. ठीक है, ये Okay, formula. sir. This was only the doubt. So we have to remember this formula. Yes, you have to remember this formula. Okay, sir.
done doubt. Okay, so this is related to the last question. Now I am solving let's say the question which I have given. So let's say first 5 question doubts, you know, one by one we are going to go. So first 5 questions, any doubt? 4, 5, okay, 4, 5, 3, 1. First 5 पूछ रहा हूँ मैं. So everyone is saying like every other question. So let's go with all the question there. ठीक है. So they are saying कि Z is doubled in any atom. Which of the following statements are consistent with Bohr's theory? So you just have to write. They are saying about asking about energy, radius, velocity, and again energy. So you just need to write the formula. En is nothing but minus 13.6 Z square by N square. So obviously, what will happen if you are going to increase the Z value? This energy over here is going to be, you know, it is going to be 4 times of the energy, right, initially in magnitude. ठीक है. So Z is doubled in atom, तो magnitude में ये 4 times हो जाएगी. Let's say radius, we know that is nothing but Rn, that is my 0.529 into n square by Z. तो अगर Z आपका डबल हो जाएगा, if you are going to double the Z value, तो radius क्या हो जाएगी, half हो जाएगी. So this is what they have written over here. Dependence on Z with the other function Vn, velocity in nth function, that is going to be, you can write V naught or 2.18 into 10 to R 6 Z by n. So if you are going to double the Z, velocity is going to be doubled. That's it. So that's the question number 1. You need to remember the formula. Question number 2 is saying that a photon of 300 nanometer is absorbed by a gas. Just 1 second. Z is atomic number. Z होता है ना atomic number formula में. बोर मॉडल में Z क्या है, एटॉमिक नंबर, राइट? समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ मैं? En is energy of nth orbit. Rn is energy in this radius of nth orbit. Vn is velocity of electron in nth orbit. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ है ना. ये फॉर्मूले याद रखने इनका, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले बोला है, इसकी एक समरी बनाओ और एक साथ उनको याद रखो. If you are not remembering the formula, no matter how many questions you are going to solve, है ना, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा आपको नहीं आता है. So may remember the formula. Anyway, question number 2, they are saying a photon is absorbed or it is emitting 2 photons. तो ऐसे कैसे होगा, एक photon absorb हुआ और 2 photon निकल गए. That means electron first gets excited to some energy state और जब वो फिर वापस आ रहा है तो वो ब्रेक होके आ रहा है. This is what they are saying. So in a way they want to say कि ये जो total energy है वो इस total energy के बराबर है. तो यहाँ पे energy कितनी है, you can write hc by lambda, that is 300 nanometer. अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे 3000, which is equals to hc by 4960 plus hc by lambda. You don't know, they are asking कि सेकंड वाले की वही वेवलेंथ बताओ. ठीक है, तो सबको मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा है लेकिन ऑप्शंस सारे नैनोमीटर में है, सो कीप इट नैनोमीटर. बस अब इसको सॉल्व कर लो. hc कट जाएगा, hc we are going to take common from here. So this is nothing but 1 by 300 is nothing but 1 by, let's say, 496 plus 1 by lambda. And you can say 1 by lambda is nothing but 1 by 300 minus 1 by 496. The simplest way to solve it, assume it 500 and the exact value you have to calculate, then it is going to take time. तो बस अब आप निकाल सकते हो. 300 into 500 और ऊपर आएगा 200. So this is going to be
2.5 somewhere. This 1 by lambda is going to be close to 750. तो देख लो कौन सा ऑप्शन 750 के आसपास है. That is your answer. Very good, Ritisha. Very good. Sankal, I know that some of you might be getting the answer, but some of you are not revising, तो उनको ये दिक्कतें आ रही हैं solution के बाद भी. So I'm taking that. Right. Meanwhile, what I can do is I can share, let's say, one PDF. Okay, है ना, over here. This. Okay. Meanwhile, you can start solving. Those who are not having any doubt, they can start solving this. Let's say a test, kind of a test, right? Assignment. It is an assignment. So you can start solving. What say? So I'm going to, let's say, share. Wait for me. And whoever is having doubt, they just wait. I'm just sharing. Okay, wait. Right now, I'm just sharing. Wait. And again, about let's say doubt classes, I got the let's say confirmation from 3 groups, from Palava, Thane, and Kalyan, and I have shared one practice sheet to that doubt group also, like we have mentioned in the last class. Okay, but Manpada I didn't get. So who was responsible for Manpada? किसने अपना नंबर दिया था? तब बनाया ही नहीं ग्रुप. नंबर दे दिया ग्रुप नहीं बनाया. तो उसमें मैं तो हूँ नहीं. Anyway, so what I want is कि I'm just providing the external something. ठीक है, तो वो मैं डाउट ग्रुप पे डाल रहा हूँ so that you can discuss, you can solve. ठीक है. ठीक है. Anyway, just give me one minute and I'm going to share this test. Do it. ओके, आई होप कि सबको ये टेस्ट मिल गया है. And all of you can start
That's it, solving. If you have any doubt, we will cover it in the end. Okay. So now let's focus. Whoever is having a doubt in DPP2, let's focus over here. So now the question number 3. So if the total energy of electron is in excited state is given, so can you write what is kinetic energy? Kinetic energy will be 3.4 electron volt, because total energy is nothing but minus of kinetic energy. So we know this. And hydrogen like atom, this is for Bohr model we are talking about. So Bohr model में हमने ये पढ़ा हुआ है. Kinetic energy is going to be 3.4 electron volt. Now, if you know kinetic energy 3.4 electron volt, you can calculate what is the potential difference. ठीक है, मैंने आपको बताया था kinetic energy is nothing but E into V. So potential difference मिल गया 3.4 volt. Now you can just apply the formula. Lambda is under root 150 by V. So that's it. That's your answer. 150 by V in angstrom. Be careful in that part. Over here, nanometer are also given and angstrom are also given. So the answer over here is in angstrom. So you will get this is your answer. A. Question number 4. The electron, proton and alpha particle have kinetic energy is equals to 16 E. हाँ भाई, इसको doubt है. Let's say anyone having any doubt, then they can keep raising hand. हाँ भाई बताओ. सर फोर्थ क्वेश्चन में मुझे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा आ रहा है. क्या सर मुझे इस क्वेश्चन में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से लेस आ रहा है. इसमें मोर अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मुझे एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ. So they are saying for electron it is 16 E, right? For proton this is 4 E, and for alpha particle it is E only, right? And what is the quantitative order of de Broglie wavelength? So we are just going to apply the formula is H by under root 2 MKE. And what we are going to do is we are going to write the value. So lambda electron के लिए हो जाएगा ये H upon root 2 M mass of electron into Ke. You can write 16E. Lambda proton you can write H upon under root 2 proton, है ना? So 2 mass of proton into 4E, and lambda alpha is nothing but H upon under root 2m alpha into E. Now mass of proton you can write in terms of mass of electron, so you can write 1837 over here. So we are going to write 1837 mass of electron, and here we can write 1837 into 4. Okay, into mass of electron. Now you are going to see what will happen here. ये वाला 4 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे 1837 है, यहाँ पे भी क्या है 1837 into 4 का फैक्टर आ रहा है. So that's why the lambda of alpha and lambda of protons are going to be same, and why lambda of electron is going to be more. ठीक है, over here if you are going to see, तो डिनोमिनेटर में क्या है, आपको ज्यादा वैल्यू दे रखी है 1837 in comparison to this, है ना? तो भाई अगर मान लो कहीं पे ये लिखा है लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m के ई, अगर ये इनमें से कुछ भी बढ़ेगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, नीचे घटेगा. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. यहाँ पे 1837 वैल्यू आ रही है तो क्या हो रहा है, घट रहा है उनका लैम्डा. सो दैट्स इट, दैट्स द आंसर. अब बताओ भाई कहाँ गड़बड़ हो गई तुमसे? हो गया सर. ओके ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5. So when an excited hydrogen atom returned to its ground state, some visible quanta were observed along with other quanta. Visible quanta observed का मतलब क्या हुआ कि ये वार्मर सीरीज में आया है. ठीक है. Which of the following transition must have occurred, they are saying. तो मान लो कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट हो रहा है, मान लो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, ये N2 से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, ये हमें नहीं पता है,
N1 में जा रहा है, बट ये कह रहे हैं कि एक बामर लाइन तो मिल ही रही है ना, N2 = 2। तो अगर ये 2 में पहुंच रहा है तो N2 से 1 में तो जाएगा ही ना, ये वाली लाइन डेफिनेटली मिलेगी 2 to 1। सो दैट्स द आंसर। ठीक है, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि अगर भाई बामर सीरीज की लाइन मिल रही है तो 2 के बाद उसको कहाँ जाना है, फाइनली दे आर सेइंग कि रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो वही 2 से फिर 1 जाएगा इलेक्ट्रॉन। Now, the radii of 2 of the first 4 Bohr orbit of hydrogen atom are in the ratio of 1:4। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट 4 Bohr orbits, ठीक है, इनमें से 2 जो है रेडियस वो उनका रेशियो ऐसा है। तो मैं एक को लिख ले रहा हूँ, लेट्स से R1। R1 का मतलब नहीं है फर्स्ट Bohr ऑर्बिट, R1 का मतलब है एक कोई ऑर्बिट है ना, लोअर ऑर्बिट, जैसे N1 N2 लिखते थे, R1। and R2 is nothing but higher, let's say, orbit। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, we are going to write R1 is nothing but R0 n square by z, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n1 square, let's say, and R0 n2 square by z। now they are saying कि ये जो वैल्यू है ये 1:4 का रेशियो है। so that's it। so ये they are saying कि R2 by R1 is nothing but 4/1, और you can take this ratio like, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n2 square by n1 square which is 4:1। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे n2 और n1 का रेशियो मिल गया, दैट इज 2:1। दिस इज द रेशियो। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है और यहाँ ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको 2, है ना, इसका मतलब ये है ये रेशियो जो है वो 2:1 रहेगा। दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो क्या हो जाएगा, अगर n1 जो है 1 होगा तो n2 2 हो जाएगा, और अगर n1 2 होगा तो n2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि इन्होंने फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात की है। मान लो अगर फर्स्ट 6 ऑर्बिट बोल दिया होता तो अगर n1 3 होता तो n2 6 हो जाता। ठीक है, गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। So yes, they are, whenever they are saying like let's say like this, तो इसका मतलब 3:1। But anyway, we are talking about over here। तो यहाँ से 2, यहाँ पे क्या हुआ 1 से 2, 1 से 2 का एनर्जी डिफरेंस देख लो आप। तो 1 से 2 का एनर्जी डिफरेंस आपको मिल जाएगा 10.2, राइट। यू जस्ट नीड टू राइट द एनर्जी डायग्राम -13.6। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ एवरीथिंग। नाउ वी नो, so we are going to write energy diagram -13.6 -3.4 -1.51 like that, -0.85। so we know what is the difference here, 10.2, and what is the difference between second and fourth, that is 2.5। so that's it, you just need to check। so this is your answer। a proton and an alpha particles are accelerated through a same potential difference from rest। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सीलरेट किया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज नथिंग बट h/√2m/k, और काइनेटिक एनर्जी होता है q × v। तो ये दिस v दे आर सेइंग, है ना, व्हेनेवर दे आर सेइंग डी ब्रॉगली, तो आपके दिमाग में ये वाले फॉर्मूले एकदम आने चाहिए कि कौन से हैं। अब ये कह रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ठीक है, तो v वैल्यू दोनों के लिए सेम है। देन व्हाट दे आर सेइंग, देन द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो वी विल राइट लैम्डा p इज नथिंग बट h/√2m mass of proton, q e mass charge of proton e, and into v। lambda alpha क्या हो जाएगा, h/√2 mass of alpha particle which is nothing but 4 times mass of proton into charge of alpha particle 2 times 2 into e √v, है ना, v दोनों जगह सेम है, that is already given। so when you are going to, let's say, take the ratio lambda p by lambda alpha, so what will happen, this you can cancel out others। तो यहाँ पे जो फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है वो है 4 ये वाला और ये 2 ये वाला। so that's why
this is you are going to write under root 2m EV, and here you are going to write H upon, ये कितना आ जाएगा 8 into 4 into 2 16 m mass of proton E into V. So everything is going to cancel out. यहाँ पे root 8 बच जाएगा, which is 2 root. So 2 root 2 is to 1 आ जाएगा. अब देख लो इन्होंने क्या पूछा है. So that's it. See. Ionization energy of hydrogen like ion A is greater than the another hydrogen like ion B. Ionization energy क्या होती है? E naught Z square, right? या फिर you can say 13.6 Z square. तो A की हो जाएगी Z A का square, 13.6 Z B square, right? You don't know Z A Z B, but they are saying कि A की ज्यादा है. इसका मतलब है Z A is greater than Z B. ठीक है. Let R, U, E and L are represents to radius of orbit, speed of electron, total energy and angular momentum. So speed U मतलब speed है ना, speed मतलब velocity, speed of electron. उसका फॉर्मूला क्या होता है? V की जगह इन्होंने U ले लिया है, तो हम लिख लेंगे 2.18 into 10⁻⁶ Z/n. फॉर्मूला नहीं चेंज होगा ना. ठीक है. तो बस अब आपको ये देखना है कि ये Z से डिपेंडेंस दे रखी है एंड दे हैव सेड कि n की वैल्यू सेम है, n नहीं चेंज हो रहा है. तो आप फॉर्मूला देखते जाओ. R के लिए क्या है? R नॉट n स्क्वायर बाई Z. तो ये क्या हो गया? Z ज्यादा तो R कम, तो RA इज गोइंग टू बी लेस देन RB. तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, लेस होना चाहिए था. स्पीड में देख लो, स्पीड का क्या होता है? U इज नथिंग बट, ये बता दिया है, इज प्रोपोर्शनल टू Z. तो Z ज्यादा होगा तो U ज्यादा होगा, तो दिस इज करेक्ट. एनर्जी में Z स्क्वायर होता है, राइट? एनर्जी में आपका क्या होता है? Z स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, ओके. सो ये आई थिंक ये मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, ये साइन के साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है. दैट इज द ओनली पॉसिबल आंसर, सिंगल करेक्ट है. तो मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, विद साइन ले रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि एनर्जी इज नथिंग बट माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, राइट? तो यहाँ माइनस का साइन है, तो Z बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? सो दिस शुड बी अपोजिट. एंड LA एंड LB में that is they are saying angular momentum. Angular momentum क्या होगा? MVR, which is nothing but NH/2 pi. That does not depends on Z value. तो फिर क्या हो जाएगा? LA और LB बराबर हो जाएंगे. ठीक है. So MVR is equals to NH/2 pi. That does not depends on Z value. Just removing this all annotations. Question number 9, they are saying there are samples of hydrogen and helium atom. So there are samples of hydrogen and helium atom. Okay. Both are in some excited state, है ना? Some, not same. ठीक है. So read carefully. H helium. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी एक excited state में you don't know N2 value, and यहाँ पे भी N2 you don't know. In hydrogen atom, total number of lines observed in Balmer series is 4. तो N2 से वो जब 2 में आ रहा है ना, whenever the electron is coming from N2 to 2, तो कह रहे हैं 4 लाइन्स आ रही हैं, 4 लाइन्स ऑब्जर्व हो रही हैं. ठीक है. ओके. तो आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लाइन्स कैसे देखते हैं बार्मर सीरीज में. सो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती हैं? If you can recall, N2 minus 2, that is number of lines. ठीक है, in Balmer series, which is nothing but 4. तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6. So this is the formula based. Directly you can write N2 की वैल्यू हो गई 6. Number of lines are going to be in Balmer series N2 minus 2. And in helium ion, total number of lines observed in Paschen series is 1. Paschen series के लिए formula क्या हो जाएगा? N2 minus 3, 1.
N2 की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पे N2 आ गया आपका 6 और यहाँ पे N2 आ गया 4, ठीक है। नाउ ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी लेंथी। तो अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है N2 इक्वल टू 6 में है और हीलियम में N2 इक्वल टू 4 में है। नाउ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन सैंपल मेक ट्रांजिशन टू लोअर स्टेट, मतलब N2 इक्वल टू 6 से ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है ना, N1 वी डोंट नो, इट्स एक्साइटेड स्टेट, so lower state from its excited state, then the photon corresponding to the line of maximum energy of Balmer series of hydrogen sample. Balmer series के लिए बोल रहे हैं maximum energy for Balmer series, so they have clearly said कि ये कहाँ पे जा रहा है, N1 equals to 2 में जा रहा है। मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कौन सा होगा, जब 6 से 2 जाएगा, ठीक है। ये फोटोन निकला, ये कहाँ गया फोटोन, is used to further excite the already excited helium plus ion, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन अभी n equals to 4 N2 equals to 4 में पड़ा है, इस पे जाके ये फोटोन गिर रहा है और इसको एक्साइट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे होगा वही एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो आपको पता है डेल्टा E इज नथिंग बट minus 13.6 z square, right? And you can write 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, तो n1 square is 1 by 4, तो अच्छा ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो 1 by 4, 13.6 z square 1 by 4 minus 1 by 36, which will be equals to z की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 13.6, which will be equals to 13.6 z square यहाँ पे 4 हो जाएगा, n1 square we know that is going to be, अब यहाँ पे ये n1 क्यों हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, क्योंकि इससे भी हायर स्टेट में जा रहा है, तो लोअर लेट्स से स्टेट कौन सी हो गई 4, ठीक है। ये बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा, ये फर्दर एक्साइट हो गया, तो n2 इक्वल्स टू 4 जो अभी था वो आगे आने वाले ट्रांजेक्शन के लिए है ना n1 हो गया, राइट। 4 इज n1, हायर स्टेट में जाना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 16 माइनस वी डोंट नो n2 स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये हटा दो, ठीक है। एंड इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से अंदर इसको करेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 4 minus 4 by n2 square which is nothing but 1 by 4 minus 1 by 36, ये कट गया, and now you can write n2 square is nothing but 36 into 4 144 और n2 equals to 12, so you can solve and you will be able to get कि ये 12वीं स्टेट में पहुंच जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको ये याद रखना पड़ेगा, जो एनर्जी का डिफरेंस है हाइड्रोजन 1 और 2 के बीच में है, अगर Z की वैल्यू डबल करेंगे है ना, जैसे हीलियम आयन होगा, तो वो वही डिफरेंस किसके बीच में हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में कहीं डिफरेंस है, राइट, तो वो उसका डबल करेंगे हर जगह, ठीक है। तो वही डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस था 6 से 2 के बीच में, तो इसका डबल हो गया, 6 का डबल 12 और 2 का डबल 4, तो ये डिफरेंस सेम कहाँ गया, 12 से 4 के बीच में। ये कैसे आया, हाउ वी आर एबल टू गेट एट दिस वैल्यू, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ ये लिखा है हाइड्रोजन के लिए 13.6, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर which is also equal to let's say some other metal जिसका z स्क्वायर वैल्यू है, और यहाँ पे n1 डैश है, let's say n1 डैश स्क्वायर minus 1 by n2 डैश स्क्वायर। So if you are going to cut it, if you are going to let's say multiply over here, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर n1 डैश स्क्वायर minus z स्क्वायर n2 डैश स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं है ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट मीन्स 1 upon n1 square will be equals to z square by n1 dash square, or you can say n1 is should be equals to है ना n1 dash divided by z, or you can say n1 dash should be equals to, इधर मल्टीप्लाई हो गया n1 into z, तो यही हो रहा है यहाँ पे। हीलियम के लिए जो n1 डैश है वो क्या हो गया, n1 into z हो गया, n1 किसका, हाइड्रोजन का, z किसका, हीलियम का,
आर यू गेटिंग फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? ये फॉलो कर पा रहे हो? ठीक है, ये जेड स्क्वायर अंदर गया तो फिर वी हैव जस्ट कंपेयर, तो ये बात आ गई आपकी। तो जब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का फर्स्ट और यहाँ सेकंड हाइड्रोजन के लिए, तो फर्स्ट इन हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है तो 2 और 4 हो गया। लिथियम के लिए देखेंगे तो 3 और 6 हो गया डायरेक्टली। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑल द टाइम फॉर एनर्जी वैल्यू, राइट? ऐसे करते हुए बैठना नहीं है हमें, ठीक है? लिथियम 2, ऐसे आगे आप कर सकते हैं। So okay, let's move on to question number 10. Yes, डाउट जिसको है पूछ लो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और नंबर ऑफ लाइन अलग अलग है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब होता है फोटॉन्स, और नंबर ऑफ लाइन मतलब N2 नंबर से ऑफ लाइन भी वही होगा आई थिंक कि फोटोन है, मतलब अब ये देखना पड़ेगा किस सेंस में किसको यूज कर रहे हैं। सो दैट इज फोटॉन्स, क्योंकि आप अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स। यहाँ पे आपने N2 माइनस N1 लिया ना उसके लिए, पर वो एक और फॉर्मूला स्पेक्ट्रल लाइंस के रहता है डेल्टा और ब्रैकेट में डेल्टा प्लस फिर 1 से अपॉन बोलना एक 2, मिनट, फिर से क्या कह रहे हो? डेल्टा n ब्रैकेट में डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाउंड करने टोटल का। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई, यस। हाँ, तो इसमें और जो आपने बोला N2 माइनस N1 में, ये तो एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, दिस इज सेम ये एनर्जी, नहीं, दिस इज ये पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले मतलब। नहीं सॉरी, यही क्वेश्चन है सर, हाँ, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इस तो इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में, था ना, अच्छा इस क्वेश्चन में बामर लाइन, ये तो देखो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है और उसमें फिक्स हो गया कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। इसमें ये नहीं कह रहे बामर सीरीज में कितनी होंगी। आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई अंडरस्टैंड योर डाउट। अगर मैं बोलूं 6 से 2 में आ रहा है और बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एन इज 4, ठीक है? एंड देन यू आर गोइंग टू से 4 into and delta n plus 1 5 divided by 2, so you are going to say total are 10 spectral lines, जिसमें 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बामर सीरीज की हैं, 3 स्पाशियन की हैं, 2 ब्रैकेट की हैं एंड 1 है ना फुंड सीरीज की है। समझ में आया? 6 से 5 एक ये फुंड सीरीज वाली भी आएगी ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, दैट इज फॉर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज नॉट स्पेशली फॉर बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए क्या है, या तो मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि आप पहले लिख लो ये डेल्टा एन का फॉर्मूला 1 + 2 + 3 टू डेल्टा एन। फिर आप देख लो ये डेल्टा एन कहाँ पे आ रहा है। अगर n = 2 में आ रहा है तो बामर से स्टार्ट करेंगे, n = 1 में आ रहा है तो लाइमन से स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर एक ऐसा फॉर्मूला कराया था, उसमें पूछ रहे थे विजिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल हाँ पे हाँ कितने होंगे, है ना? कराया था प्रैक्टिस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर और जैसे कि ये बामर में विजिबल विजिबल लाइट आता है ना, जो वेव जाता है, हाँ तो वेव जब बामर में मतलब N1 तो 2 होता है और N2 कोई भी हो सकता है 3 से लेके ऊपर तक, हाँ, कोई भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन फिर पास्चन में भी 3 ये मिनिमम लिमिट है और उसके ऊपर 4 नेक्स्ट लिमिट है, हाँ तो करेक्ट 4 to 3 आया तो इसमें इंफ्रारेड लाइट आया। करेक्ट। लेकिन अगर वही बारबेल में बोला तो इंफ्रारेड आएगा कि विजिबल होगा? तो हमने उसकी वैल्यू सॉल्व भी कराई थी ना कि बामर में लैम्डा मैक्स क्या बनेगा, लैम्डा मिन क्या बनेगा। तो लैम्डा मैक्स कुछ ऐसा 6500 समथिंग बन रहा था विच इज इन विजिबल रीजन, और लैम्डा जो मिन आ रहा था वो आ रहा था आपका 3648 एंगस्ट्रॉम। सो दैट इज जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ विजिबल रीजन, उसको काउंट। क्योंकि एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा भी होगा ना बारबर में N4 to N3 आधा ही गया, नहीं फिर नहीं, इसके बाद नीचे वो गया, बामर में नहीं होगा। n4 to n3 इज पार्शियल सीरीज, सब ब्रेक होके गया, तो पहले 3 में गया फिर उसके बाद 2 में गया, तो वो 3 से 2 काउंट करेंगे ना हम। तो 4 to 3 काउंट नहीं होगा। ओके, यू आर गेटिंग दिस। अरे भाई, मैंने एक बार आपको ऐसे समझाया था कि मान लो कहीं n2 जो है, मान लो ये 5 है और ये n1 = 2 में आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं पहले एक सीक्वेंस से जाऊं, है ना, 5 से 2, राइट। आई विल से कि 5 से फिर ये क्या हो गया 4 3, हाँ। फिर मैं कहूँ 5 से 3 एंड 5 से 4। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी दे दी, देख ली कि 5 से कहाँ कहाँ जा सकता है। देन आई विल से कि 4 से 2, 4 से 3, 4 से सारी पॉसिबिलिटी हो गई, एंड फिर 3 से 2। इन्हीं को अगर रीअरेंज कर दूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द सेम थिंग आई कैन से लाइक दिस
कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 2 में आ सकता है, कहीं से भी 2 में आ गया। हाँ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक साथ लिख ली। फिर yes, मैंने sir. बोला कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 3 में आ सकता है, तो ये एक साथ आ गई। और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 4 में आ सकता है। तो जब मैंने बोला है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, तो ये सारी लाइन बामर सीरीज की हो गई। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 3 में आया तो ये पास्चन हो गई। आई एम नॉट सेइंग कि 3 के बाद वो नीचे नहीं जाएगा, आई एम सेइंग जाएगा, लेकिन वो काउंट किस में होगा? अगर 3 से 2 में गया तो काउंट होगा बामर में, 3 से 1 हुआ तो वो काउंट होगा लाइमन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। Okay, so this is question number 9. Now question number 10. So they are saying the potential energy of electron present in ground state of beryllium 3 plus ion is represented by. Okay, so we have to write K is nothing but potential energy is nothing but K Q1 Q2 by R. ठीक है, they should write the what is R over here. I think वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा ये K क्या है ना? ओके, आई थिंक मैंने ये वाली बात नहीं बताई है ना आपको, राइट? ये तो K is nothing but there is 1/4 pi epsilon naught, ये और आता है ना। K की वैल्यू किसके बराबर आती है? 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called permittivity। ठीक है, तो बस आपको K, हाँ K कांस्टेंट है, ये याद रखना है। हाँ सर शायद से हम लोग P उससे भी निकाल सकते ना, -13.6 Z²/n²। नहीं, ये तो सिर्फ निकाल सकते हैं, लेकिन आप आंसर किस फॉर्म में दे रखे हैं आपको, उसमें ये वाली बातें नहीं आ पाएंगी ना। आप उससे भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, बट ऑप्शन में नहीं दिखेंगे ना वो तो वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स इट। K की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught एंड Q1 इज नथिंग बट कितना है, बेरिलियम न्यूक्लियस है तो 4e into let's say electron E divided by R। so that's it, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया आपका, एंड माइनस साइन और आएगा क्योंकि ये एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, बाकी सब जगह नेगेटिव दे रखा है, यहाँ नेगेटिव आएगा। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट। So epsilon naught is also a constant that is called permittivity in air। Q1 की वैल्यू 4 ऐसे आई कि भाई बेरिलियम न्यूक्लियस दे रखा है, बेरिलियम में कितने प्रोटॉन है? 4। सो पर ब्रिटिशा परमिटिविटी और एयर और स्पेस की सेम ही मानते हैं। एयर का जो परमिटिविटी वैल्यू है वो 1.01 समथिंग ऐसे कुछ करके आता है, तो एयर स्पेस सेम मान लो। हाउ पोटेंशियल एनर्जी केम माइनस, तो एक न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव दैट इज माइनस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में आपको साइन रखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए माइनस। और वैसे भी हमने देखा तो है पोटेंशियल एनर्जी माइनस ही तो देखी है हमने। कैटिंग एज सृष्टि, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी कुछ 8.85 ऐसे कुछ करके आती है, 10 टू पावर समथिंग -11/12 देखना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक 12 होगा, आई थिंक जस्ट चेक इट, उससे पता चल जाएगा। 8.85 समथिंग, 8.85 into 10 to the -12, बट ये देखना पड़ेगा एक बार वैल्यू। K is 9 into 10 to the 9, करेक्ट।
परमिटिविटी is actually something which is going to tell us कि चार्ज के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, राइट। तो जैसे आप मीडियम चेंज कर दोगे, मान लो कहीं पोलर मीडियम में डाल दिया, वाटर में डाल दिया दो चार्ज, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, ठीक है। चलो ये तो गई DPP2। आई थिंक सृष्टि, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? Yes, sir. हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? In example one, थोड़ा तेज बोलोगे। in example one of हाँ? this DPP2. कौन सा क्वेश्चन? Example one, question one. क्वेश्चन नंबर 1, यस। So here energy has become 4 times. दे आर सेइंग कि अगर Z डबल होगा तो क्या होगा? Z डबल हुआ तो एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। Yes. And so correct option. What is the correct option? तो ये गोइंग टू चेक कि भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। एनर्जी डबल यहाँ लिखा है तो ये गलत हो गया। रेडियस ऑफ ऑर्बिट डबल, नहीं, हाफ हो जाएगी। वेलोसिटी डबल, ये हो जाएगा सही, सी। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग यस बोलो बेटा, सृष्टि यस। एक मिनट फिर से बोलो। Hello. हाँ, Velocity is becoming double. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Hello. Is it audible, sir? एक मिनट, जस्ट वेट 1 सेकेंड, आई हैव टू स्विच ऑफ माय फैन। यस बोलो बेटा। Velocity here is becoming double. हाँ, वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी v नॉट इंटू जेड बाई एन, तो z के प्रोपोर्शनल है। z डबल करोगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा। So it is correct option. हाँ, सो सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। Okay. और 10th क्वेश्चन में यस नॉय हमने कैसे बोला है कि ये 4e हो जाएगा। बेरिलियम न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन हैं? बेरिलियम पे 4, सो दैट्स व्हाई 4e। न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा? 4e, है ना। Ze लिखते हैं ना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze, तो बेरिलियम का की Z वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके गुड, वेरी गुड, तो डिस्कार्ड कर देते हैं। नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सॉल्यूशन ऑफ एडवांस दिस लेट्स से बुकलेट, है ना। सो कीप सॉल्विंग। मीनवाइल अगर कहीं डाउट आएगा तो मैं ऑब्वियसली सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा ही, आप इसमें से देख सकते हो, जस्ट फॉर योर लेट्स से कन्वीनियंस, कि आप बार बार परेशान नहीं हो, ठीक है। एंड now what should we do? I would like to let's say answer some doubts before like further moving on. तो भाई अपने अपने डाउट अगर हो तो बता दो। यस, हाँ बोलो आदित्य। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir. I had a doubt in problem 5 ओके, in the booklet, page number 43. पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, ओके। ये है नंबर 43, इस एग्जांपल राइट 5, यस। हाँ बोलो। Sir, I didn't understand the fifth one. ये तो हमने आपको बताया है ना, क्या होता है, यही तो अभी बता रहे थे। आप n की कोई वैल्यू ले लो लेट्स से, ठीक है। n की कोई वैल्यू ले लो लेट्स से
6, तो ये 5 हो गया, ऐसे 4 3 2 1 आ गया, राइट। दैट्स इट। चलो यहाँ पे 2 लाइन और हैं तो 8 ले लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर बात मान लो मैं देखूं कि यहाँ पे ये n इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर जो भी है, आई थिंक एनीवे ये आई थिंक n इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, n इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे n-1 दे रखा है, फिर यहाँ पे n-1 दे रखा है, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट। Yeah, yes, sir. हाँ, तो ये n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे जो भी है, आई थिंक व्हाट इज दे आर सेइंग कि देखो n इक्वल्स टू 1 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 8 से आ सकता है ना, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, 7 से आ सकता है, लाइक 6 से आ सकता है, लाइक दैट यू आर गोइंग टू से। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स देखेंगे तो कितने हो गए, 8 to 1 है ना, 7 to 1 ऐसे करके देखेंगे तो 2 से 1, राइट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 है ना, 8 से 1 7 से 1 6 से 1 5 से 1 4 से 1, तो 7। तो उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख दिया, n-1, ठीक है। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि डिफरेंट सीरीज में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, डिफरेंट सीरीज में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं। तो बामर सीरीज में मैंने आपको लिखा था n2-2 है ना, तो वो यहीं पे ऐसे ही आ गया। अगर हम बामर सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे n2-2 आ जाएगा। लाइमन की बात करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी n2-1। पार्शियन में n2-3 ऐसे आप लिख सकते हो, n2-4 ऐसे आगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है, बस ऐसे निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने एक और बात बोली थी कि व्हाट आई सेड कि ये जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके आप डेल्टा n तक लिख लो, ठीक है, ऐसे आप लिख लो डेल्टा n तक फॉर्मूला। डेल्टा n का मतलब क्या हुआ आपका, n2 दैट्स -1, क्योंकि अभी मैं मान रहा हूँ ये ग्राउंड स्टेट में जा रही है सारी की सारी, अभी मैं मान रहा हूँ, नहीं तो फिर आप वहां पे लिख दोगे कि n2 माइनस कौन सा होगा। अभी मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा n, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया डेल्टा n इंटू डेल्टा n+1/2। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये डेल्टा n क्या लिखना है आपको। अगर आप लाइमन सीरीज लिख रहे हो तो आप लिखोगे, लाइमन सीरीज लिख रहे हो तो आपका n1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डेल्टा n हो जाएगा आपका n2-1। सो यू आर एक्चुअली राइटिंग लाइक दिस 1 2 3 प्लस लाइक टू n-1, ठीक है। आप डेल्टा n को क्या लिख दिया आपने, n-1 या n2-1। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये मैं, हाँ अगर ये 1 में आ रहा है तो मैं लाइमन से स्टार्ट करूँ, है ना, ये लाइमन हो गया, फिर इसके पहले वाला बामर हो गया, राइट, एंड देन वी कैन राइट लाइक, है ना, पार्शियल ब्रैकेट और सब। अगर मान लो मेरा ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो 1 में ना आके 2 में आए तो n1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये कहाँ स्टॉप, डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2-2, राइट। डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2-2, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, बामर से स्टार्ट करूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे आप इसको, एक ही चीज को कहने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, ये कोई एक तरीका समझ लो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। या तो फॉर्मूला समझ लो या ये कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हाटएवर, ठीक है। चलो ओके, दैट्स इट। हाँ दक्ष बोलो भाई, क्या डाउट है? Hello, sir. हाँ, Sir, means how to convert kilocalories per mole in electron volt? तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज नथिंग बट 96 किलो जूल पर मोल। और एक कैलोरी में कितने कितने जूल होते हैं, 4.18 ना approximately. So you are going to write 1 joule is nothing but 1 calorie divided by 4.18. So you are going to put over here joule की जगह बस ये लिख दो, तो 96 है ना किलो, जूल की जगह आपने क्या लिखा, कैल डिवाइड बाय राइट 4.18. Solve it, you are able to get it down. Okay, sir. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 24 3 के आसपास आ जाएगा, आई थिंक 3 to solve it.
Okay, next out, Angarika. बोलो बेटा. Yes, sir. Sir, I have a doubt in a question from the module. Mhm. For that, could you please open the PDF which has the answers along with the question? Which question? No, the PDF which you had sent yesterday, which has the answers along with the question. Okay, DPP, which we have discussed right now. No, sir. The answers of the module. Answers of the module. Yes, sir. Yes, sir. Sir, could you please go to page number 61, get equipped to JE Advanced? Okay, so you want me to go to the page number 61 in the module, right? Yes, sir. So in the PDF which has the answers. In the PDF which has the answers. Yes, Okay. sir. Get equipped इसमें to तो JE 61 है ही Advanced. नहीं. Those pages are only 56. Okay, okay. So then, could you please go to get equipped to JE Advanced, question number 10. Page number you can say 61. 61 is in the booklet. Okay, so you are Yes. saying okay booklet. Yes. ये कुछ यहाँ पे हो गया. Right. Yes. Photo Question number- electrons are ejected from a metal surface. This question. Yes, sir. हाँ, ठीक है. So photoelectrons are ejected from a metal surface using photons of energy. This, the de Broglie wavelength of electrons emitted with kinetic energy is equals to 59 angstrom. What is the photoelectric threshold in the joule? Okay. So ये तो ये कह रहे हैं कि ये photons गिर रहे हैं, right? This is the energy. These photons are falling on the, let's say, metal surface. So you can write this is 4 into 10 to the minus 20 joule is incident energy. The de Broglie wavelength they have given with my maximum kinetic energy, that is for 59 angstrom. So you are going to apply this formula. Lambda equals to under root 150 by V, and you are going to write lambda is 59 angstrom. So you need to take the square and then you will be able to calculate V value. ठीक है, तो ये V आपका इसका स्क्वायर होगा तो 150 डिवाइड बाई 59 इंटू 59 ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट? अब इससे क्या वैल्यू निकलेगी अगर मैं 60 के हिसाब से देखूं तो ये 2.5 एंड ये फर्दर 2.5 इज गोइंग टू लेट्स से कट दिस इनटू 24 अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लिए मैंने, तो आपको ये आ गया 1/24 वोल्ट. दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू वी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? E इंटू वी, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? ये 1/24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/24 को. तो 1/24 इंटू 1.6 इंटू 10 to the minus 19. सो लेट्स से यू आर गोइंग टू राइट -20, तो ये 16 हो गया. इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2/3 अप्रोक्सीमेटली 0.66. ये कीपिंग इन माइंड कि आप मैंने यहाँ 60 ले रखा है 59 के लिए, तो ये कुछ ऐसा आ गया 0.66 इंटू 10 to the minus 20 जूल. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आई? 0.666 इंटू 10 to the minus 20 जूल. अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, आपको इंसिडेंट एनर्जी पता है ना, वो है 4 into 10 to the minus 20. तो कैन यू कैलकुलेट what is the photoelectric threshold in joules? मतलब they are asking threshold energy. तो 4 into 10 to the minus 20 is equals to let's say 5 plus 0.66 into 10 to the minus 20. So the value is going to be around 3.33 something, which is this option first. Okay, Are you sir. getting what I am doing? Yes, sir. सर एक्चुअली मैंने वो सोल्यूशन वाला PDF चेक किया था, तो वहाँ पे था कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू EP माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. वो ठीक है, बट देन नीचे नेक्स्ट स्टेप था कि 4 into 10 to the power minus 20. देन वो I think उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काइनेटिक एनर्जी अलग तरीके से निकाली है. जैसे हमने तो यहाँ से लैम्डा है ना, ये वाले फॉर्मूले से निकाल ली कि भाई 150 by V से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला. And I think they have used h lambda equals to h upon root 2 me mke वाला formula they have used.
So they have taken square, फिर इसका square and then है ना, फिर वहां से यस निकाला। तो यहाँ पे बीच में वेवलेंथ आ गया तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं। तो वही है कि you can solve these question with any let's say method. ये थोड़ा आसान पड़ेगा, right? And anyway we have to choose कि out of 4 which option is like more close. So we can eliminate. That's why I have taken some approximation over here. So it is always good to take some approximation just to save yourself from the lengthy calculation. But good approximation है ना, 60 को 100 नहीं लिख लेना है। Yes sir. Okay, got it. Thank you. I have no idea that how you are going to solve के square root कैसे निकालेंगे। सृष्टि, because these are the metals who loses electron easily. आपने पढ़ा हुआ है ना, reactive metals से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं। Anyway, okay भाई रितवन चटर्जी, yes, next doubt. Sir, I had a doubt in page number 70, question 7. Anonymous attendee, I think कि आपके लिए support batch अभी अलग हो जाएगा। Okay, so whoever is having like schools are going to start, उनके लिए support batch अलग हो जाएगा। Okay, ठीक है। अभी हाँ, yes, again रितवन you can say. Page number 70, question 7. Page number 70, question number 7. Okay, so let's move to the okay. If the kinetic energy of an electron given as k joules with the uncertainty, uncertainty का मतलब है delta k they have given, okay, 6 into 10 to the minus 6. Then the calculate the expression of uncertainty in velocity, okay, uncertainty in position expresses your comment in k only. Okay, so what we are going to do, they want us to find delta x in terms of k. They want to find delta v in terms of k somewhere. तो कैसे निकालेंगे? Okay, so we have to find a formula which is going to relate kinetic energy. Kinetic energy, velocity, कौन सा वाला formula है? Let's say we can say momentum p square by 2m, है ना? फिर से देखते हैं, p is m into v, so p square is m square v square, and if I'm going to write like m into mv square, so then it is going to be mv square is nothing but 2 times kinetic energy, right? So p square is nothing but 2 times m into kinetic energy. ये हमें मिल गया। तो p is nothing but root 2m kinetic energy, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा p निकालना है। कैसे निकालेंगे? So we are going to write d by dk because this is written as y is nothing but some function, है ना? ऐसे लिखा हुआ है 2mx, right? So I will say what is dy by dx. Now I will differentiate it. अभी मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ, सब कुछ remove. So now I know that p is nothing but root 2mk, and I am solving dp by dk. What is dp? dp is nothing but delta p and dk is nothing but delta k. मैंने आपको बताया था d is, है ना, d is representation of delta. Delta is very small, है ना? dx जब मैं बता रहा था तो मैंने बोला था dx is बहुत very small change, है ना? तो वैसे ही है यहाँ dk क्या हो जाएगा? डेल्टा k. So when you are going to differentiate, ये तो constant value है, तो you can write root 2m k की power 1/2. इसका differentiation आपको लेना है, so you are going to write d by dk of k to power 1/2. So that's it. You are able to find delta p, which is nothing but इसका अच्छा differentiation क्या होगा? तो हमने बताया था differentiation में हमने क्या बताया था कि d by dx of x to power n का फॉर्मूला होता है n into x की पावर n minus 1. So अगर हमें यहाँ पे x की पावर 1/2 लिखा हो dy by dx, then it is going to be 1/2 x की पावर 1/2 minus 1, which is x की पावर
minus 1/2 and you can write 1/2 root x. तो ये आ गया आपका यहाँ पे. So we are going to write the same thing over here. तो ये हो जाएगा √2m है ना, डिवाइड बाई, ठीक है, ये आ जाएगा 2√k इंटू डेल्टा के. अब ये डेल्टा m को आप लिख सकते हो m डॉट डेल्टा v. So this is √2m and then you can solve. जब आपको डेल्टा v मिल जाएगा then you can apply कि डेल्टा m into डेल्टा p is nothing but is greater than or equals to hy 4 pi. बस आपको डेल्टा p पता है, then in the terms of डेल्टा p you can also write डेल्टा x. Are you getting my point, Ritavan? Yes, sir. Yes, Suhani, these type of question can come into the TWT. ठीक है. Those who don't have doubt, they can leave. Yes, obviously they can leave. Yes, I think जिन लोगों के स्कूल के साथ साथ जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनका बैच अलग बनेगा. ठीक है. अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, that I have no information. बट जो लोग स्कूल के साथ साथ कर रहे हैं उनका बैच अलग बनेगा. ठीक है. चलते हैं आगे. So we will discuss the assignment in next class. Not in next class. Next class we have to see. School coaching means मैं मतलब तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल प्राइवेट लेना चाहते हैं, कोचिंग यहाँ लेना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इंटीग्रेटेड, लेट्स से, राइट. तो इंटीग्रेटेड वालों का ऐसे ही चलता रहेगा. मॉर्निंग में जिनका स्कूल है उनके मॉर्निंग में स्कूल की क्लासेस होंगी तो उनका टाइमिंग अलग बनेगा, कुछ होगा, अब आई डोंट नो. ठीक है. सो ओके. चलो लेट्स से किसको और डाउट है. लेट्स सी. आकाश. यस, बोलो भाई. सर मुझे क्वेश्चन नंबर 9 जेई गेट इक्विप टू जेई मेन में डाउट था. पेज नंबर सर अभी 61 बताया था, राइट. वहीं कहीं होगा. ओके. हाँ. 58 या 57 ऐसा कुछ था. 57 है क्या? ओके. 58 है सर. 58. हाँ. गेट इक्विप टू जेई मेन में. अच्छा. हाँ, जेई मेन. ओके. वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज. वेव नंबर दे रखा है, ये तो शायद क्लास में डिस्कस कराया है हमने. वेव नंबर क्या होता है? 1/λ. फर्स्ट लाइन क्या होता है बार्मर सीरीज का? n1 इक्वल्स टू 2 और फर्स्ट लाइन के लिए n2 इक्वल्स टू 3 से 2 जा रहे हैं. 1/λ है न्यू बार which is nothing but rz square 1/n1 square. तो यहाँ पे लिख लो 1/4 minus 1/9. ये वैल्यू दे रखी है. They have given this value, right? They are asking कि बताओ लिथियम की फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा? वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम आयन, लिथियम 2+ आयन. ठीक है. तो आई थिंक दे आर सेइंग अबाउट द सेम. इन्होंने ये लिखा नहीं है फर्स्ट लाइन ऑफ व्हाट. सो वी विल अज्यूम कि बार्मर सीरीज के लिए बोल रहे हैं. आई थिंक यहाँ पे शायद सर इसलिए कंफ्यूज हुआ था. हाँ, तो ये थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, जो भी है दैट इज मिसिंग. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. ठीक है. सृष्टि. यस. Yes, sir. That stopping potential formula is given by kinetic energy max is equal to EVS. हाँ. यस. So if we have to find stopping potential Vs, just we have to divide kinetic energy max by E. हाँ, तो अगर जैसे काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. ठीक है. प्रणाली जवारे. यस. Yes, sir. So I have doubt in question number 33 from page number. Pranali. Sorry, who was asking? Pranali and
अगेन। Hello, sir. हाँ, So I have doubt in question number 33 from page number 48. 33, okay, sorry, 48. Yes. Okay, so are saying force of attraction, this is the question. Yes, sir. Okay, so what is force of attraction between electron and proton? ठीक है, हेलो, Yes, sir. ये फॉर्मूला है ना, k(q1 q2 by r square. Yes, sir. q1 is ze, न्यूक्लियस का चार्ज ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e डिवाइड बाय r square. ठीक है, so we are going to let's say write like this. अब r क्या होता है आपका? r होता है r naught n square by z. So we are going to put this value over here. तो ये क्या हो जाएगा? k e square into z डिवाइड बाय r naught स्क्वायर n की पावर 4 z स्क्वायर. तो ये ऊपर चला गया. तो कुल मिला के फोर्स आपका जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया ZQ डिवाइड बाई n टू पावर 4. दैट्स इट. अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू पता चल गई, नाउ यू कैन राइट कि ये कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ lithium 2+ ion is given as F. Force of attraction present in first Bohr orbit of hydrogen is, so you just write, and a force is nothing but is proportional to ZQ by n की पावर 4. Z कितना है लिथियम का? 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई n कितना है यहाँ पे 2, सो दैट इज 16. तो लेट्स से ये फोर्स आया, सम k वैल्यू कांस्टेंट में लिख ले रहा हूँ, लेट्स से समथिंग, और ये लिखा हुआ है F. ठीक है, हाइड्रोजन का कितना आएगा? हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है ZV1 है और क्या कहते हैं NV1 है. तो ये कितना आ जाएगा आपका? राइट, केवल k. और आपको पूछा गया उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे F के टर्म में, तो k से k कट गया. राइट, सो यू जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट. मान लो इसको अभी हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इंटू 16/27. आर यू गेटिंग मैंने क्या किया? Yes, sir. ठीक है, ऐसे रेशियो लेके आप निकाल सकते हो. पहले आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट डाउट चिंतन. यस, वो जो ऑप्शन 3 जो उसमें मतलब वेरी करेगा ना, मतलब थोड़ा सा तो अलग अलग रहेगा ना, आसपास का नहीं रहेगा. किसमें? यार जो 4 ऑप्शन से रहते हैं वो ज्यादा क्लोज नहीं होंगे ना डेसिमल्स में, जनरली नहीं होते हैं बट हो भी सकते हैं कभी कभी. क्योंकि वो जो रूट्स भी आता है ना, रूट 7 निकालने का, रूट 10 निकालने का, फिर ऐसा है. ये इवन नंबर्स का, ये इवन क्या प्राइम का आता है, मैं तो रैंडमली लिख देता हूँ. ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड योर डायलेमा. इतना बहुत क्लोज नहीं होगा, मतलब जनरली नहीं होता है until लेस कोई मतलब मजे ना लेना चाहे तुम लोगों के. जैसा रूट 4 2 होता है, रूट 9 3 होता है ना, तो रूट 7 बोला तो नहीं, रूट 2.5 5 ले 3 लेता नहीं हूँ. होता है भाई, रूट 5 3 नहीं होता है. नहीं, रूट 7 2.5 ले लेता हूँ फिर. ठीक है, वो तुम ले लो, 2.6 और एक्यूरेट हो जाएगा आई थिंक. वो 3 और 2 के मिडल में ही आएगा ना, क्योंकि वो हाँ, तो तुम्हें याद होना चाहिए स्क्वायर. 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676. 2.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.76. और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729. सो 2.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना? 7.29. इनके बीच में आएगा भाई. सो द एग्जैक्ट क्लोजेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2.65. वैसे फिर बहुत सब में अप्रोक्सीमेशन आएगा तो फिर आंसर भी बहुत वेरी जाता है. तो आपका अप्रोक्सीमेशन गंदा वाला है, अच्छा नहीं है. नहीं सर, वो सर 19.89 आता है ना HC का, हाँ, तो उसको 20, फिर ऐसा 6.63 को 6.60. हाँ हो सकता है, मतलब मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन काफी है इस बारे में. अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आपके आंसर जल्दी निकल जाएंगे. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू चेक कि कौन सा पास में, और अप्रोक्सीमेशन सही लेने पड़ेंगे. ठीक तो है, डेसिमल में बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, फिर आप बीच में किधर गलत हो तो पूरा गलत हो जाता है. हाँ ये तो है. तो बीच में मत करो ना कैलकुलेशन, लास्ट में करनी है सारी कैलकुलेशन. ट्राई टू डू लाइक दिस. लास्ट में बहुत स्टेप हो जाता है एक ही साथ में.
अब आई डोंट नो, मतलब मैं कैसे बोलूँ यार, कैलकुलेशन तो नहीं सिखाई जा सकती है ना कि कैसे कैलकुलेट करोगे. आई थिंक यू शुड रिमेम्बर द स्क्वायर टिल 30 तक, तो स्क्वायर याद रहने चाहिए, थोड़ा हेल्प करेंगे. यस राजदीप, व्हाट इज योर डाउट? सर आप ये 31 और 34 क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो? आई मीन आप बताओ, ये अभी मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, तो एक्सेलरेशन का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा. डिपेंडेंस है ना, डिपेंडेंस जेड क्यू बाई एन टू पावर 4. यस. अब आप देख लो, ये एक वैल्यू दे रखी है आपकी, यहाँ पे जो भी सिंबल दे रखा है ये, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस सिंबल. ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हीलियम है, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 2 और एन की वैल्यू फर्स्ट. तो ये आ गया आपका 2 का क्यूब 8/1, लेट्स से के. किसका निकालना है, हीलियम बेरिलियम के लिए निकालना है. लेट्स से ये सिंबल एक्स है, आपको नहीं पता एक्स वैल्यू. डिवाइड बाय क्या लिखोगे, z की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64k, डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है 2, तो 16, तो ये कट गया 4, तो ये आ जाएगा इधर है ना, k से k कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 2 बचेगा. सम सिंबल लाइक दिस एंड x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू द सिंबल डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा ऐसा. सर पर लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन आने पर हम लोग ऐसे कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि आसान होता है ना कट करके निकालना, वैल्यू करके वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो आप. सर और ये f इज इक्वल टू k z क्यूब बाय n रेज़ टू 4 का फॉर्मूला था ना? k q1 q2 बाय r स्क्वायर लिखा था, तो उससे z क्यू बाई एन टू पावर 4 आ गया. और सर ये ऊपर का भी वैसे ही करना है ना? वैसे ही करना है. काइनेटिक एनर्जी पूछा है उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट -13.6, मतलब एनर्जी z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. बस ये डाल के देख लेना. ओके सर. ठीक है, एनी अदर डाउट किसी को? सो आज के लिए सब खैर, बाय बाय. बाय सर. बाय. एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? सर हाँ, आपने वो आपने वो सिंगल आंसर करेक्ट, आई मीन वो असाइनमेंट भेजा है ना सर, उसका सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ नहीं रहा है. मतलब मैंने वो ये व्हाट इज लाइकली टू बी द ऑर्बिट नंबर फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम. अरे भाई 0.529 का होता के इक्वल्स टू क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो 5.29 5.29. सर तो अरे मेरी बात तो सुनो. ठीक है, हम बोलो. अच्छा तुम सर आई मीन सर मैंने वो पहले नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, तो सर 100 एंगस्ट्रॉम हुआ, तो सर 100 इज इक्वल नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम 100 होता है. सर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम ना. तो 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो 100 कहाँ से आ गया? सर 20 को पहले वो डायमीटर था ना, तो 20 का 200 हो जाएगा ना, 100 कहाँ से होगा? उसको 2 से डिवाइड किया सर. अच्छा रेडियस, हाँ ओके 100 हो गया. यस 100 एंगस्ट्रॉम आ गया. हाँ तो सर तो 100 उसमें एन स्क्वायर देखो ना, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. हाँ एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिवाइड बाई 0.529 करोगे तो कितना आएगा लगभग. हाँ सर वही आई मीन वैसा हाँ, उससे वैल्यू निकालो लगभग आई थिंक. सर कुछ तो इसमें आएगा डेसिमल में वगैरह एन. तो कर लोगे ना, मतलब या फिर मैं करूँ 5.3 मान लो. अच्छा 53 के हिसाब से कितना हो गया 30, कितना बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 है ना, तो 47 19, तो 190 समथिंग आएगा, तो 14 बन गया एन स्क्वायर. 196 का रूट होता है 14. ओके सर. सर तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेकर चलना पड़ेगा यार देखो ना तुम कैसे, ऑप्शन कैसे हैं, नहीं लोगे तो भी क्या डेसिमल में वैल्यू आएगी, देन यू हैव टू टेक द क्लोजेस्ट आंसर, राइट? यस सर. और सर ये E1 है, आई मीन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है ना? वो देखना, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा रहा हूँ. सॉल्व इट एंड देन वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. बाय सर. बाय. It is asked to find spectral lines belonging to infrared region, then we should include the spectral lines belonging to, yes, far infrared is also infrared. ठीक है, so you have to write
पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हेम्फ्री सब आपको काउंट करना पड़ेगा. या फिर यू कैन डू अनदर थिंग, you can calculate total number of spectral lines minus spectral lines belonging to Lyman and Balmer series. सृष्टि समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालो, उसमें बार्मर और लाइमन सीरीज वाली सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट.